A very good morning to all of you, my dear students. Today we are going to revise chapter 2, The Sound of Music. This chapter is divided into two parts. Both deal with the aspects of music and the legendary musicians who achieved excellence in their respective fields. So, we have already discussed part first, Ilvalian Glennie, listen to sound without hearing it. So students, today we are going to start part second, the Shanai of Bismillah Khan. In second part, we come to know about Bismillah Khan, a Shanai maestro who has achieved excellence in the field of Shanai playing. He was awarded Bharat Ratna in 2001 in recognition of his contribution in the field of music. Both are inspiring musicians who have motivated many people. So, here I am telling you the characters which are used in this chapter. First is Aurangzeb. Aurangzeb was a Mughal emperor who banned the playing of pungi in the royal court. Second one is Bismillah Khan, the legendary Shehnai player who brought this instrument to the front of the world. Next, Rasul Baksh Khan, the grandfather of the great Bismillah Khan. Next is Paigambar Baksh, the father of Bismillah Khan, Ali Baksh, maternal uncle of Bismillah Khan. So students, now we are going to discuss the summary of this chapter, means part second, the Shanai of Bismillah Khan. First is pungi was banned and then revived. जो पुंगी थी वो बैन हुई और फिर उसका जो रिवाइव्ड मीन्स जो पुनर्जन्म था वो हुआ. एम्परर औरंगजेब had banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, as it had a shrill and unpleasant sound. A barber of a family of professional musicians decided to improve the tonal quality of the pungi. He played the improved instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai means barber, the instrument was named the Shehnai. जो पुंगी थी वो बैन हुई और इसका जो पुनर्जन्म था वो कैसे हुआ. एम्परर जो औरंगजेब थे हैड बैन, उन्होंने बैन कर दिया म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट को बजाना जिसका नेम पुंगी था इन द रॉयल रेजिडेंस मीन शाही परिवार में. एज इट हैड है क्योंकि ये अनप्लीजेंट साउंड देती थी. आ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बार्बर जिसकी जो फैमिली का प्रोफेशनल म्यूजिशियंस था उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो इसकी जो ट्यून क्वालिटी है पुंगी की इसको इम्प्रूव करेंगे. और फिर जब उन्होंने इम्प्रूव किया हुआ जो इंस्ट्रूमेंट जो था वो रॉयल्टी परिवार के सामने बजाया तो इससे सभी लोग इम्प्रेस हुए. जो इंस्ट्रूमेंट था हैड टू बी गिवन, उसे एक नया नाम दिया गया. जैसे कि स्टोरी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे पहले बजाई गई थी शाह के चैम्बर में और एक नाई के द्वारा जो कि एक बार्बर था उसके द्वारा बजाई गई, इसलिए इसका नेम क्या रखा गया, शहनाई. नेक्स्ट पॉइंट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ब्रोट शहनाई टू द क्लासिकल स्टेज. क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस and for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component, means important part of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Nobat or traditional ensemble, means group of 9 instruments found at royal courts. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. जो साउंड है शहनाई की
वो बहुत ज़्यादा शुभ लगी। एंड फॉर दिस रीजन, और इस रीजन से इट इज़ स्टिल प्लेड, ये अभी भी बजाई जाती थी टेम्पल्स में और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में। इन द पास्ट में जो शहनाई थी वो एक पार्ट हुआ करता था नौबत का, और ट्रेडिशनल एंसेम्बल्स मीन्स ट्रेडिशनल जो ग्रुप था जो कि 9 इंस्ट्रूमेंट का था, उसमें जो प्ले किया जाता रॉयल कोर्ट में, उसमें शहनाई भी शामिल थी। जो क्रेडिट है फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने का वो जो श्रेय है वो किसे जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। नेक्स्ट इज म्यूज़िक वाज इन बिस्मिल्लाह खांस ब्लड, जो म्यूज़िक है वो बिस्मिल्लाह खां के ब्लड में है। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। हिज ग्रैंडफादर, फादर एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। जो बिस्मिल्लाह खां है वो बिलोंग करते हैं एक अच्छी फैमिली से, अच्छी म्यूजिशियन फैमिली से, बिहार से। उनके जो ग्रैंडफादर थे, फादर, और जो दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर थे मीन्स जो पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छे शहनाई प्लेयर थे। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड एट वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। ही स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh, and slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practices throughout the day. The following waters of the Ganga inspired him to put together and create rags that were earlier considered to be beyond that range of the शहनाई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए। ही स्टार्टेड, और उन्होंने भी स्टार्ट किया कि वो अपने जो अंकल हैं अली बख्श की साथ रहेंगे। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, उन्होंने लेसन लेना स्टार्ट किया इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन वो इसकी प्रैक्टिस करते। दी फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, जो बहता हुआ जो पानी था गंगा नदी का, वो उन्हें इंस्पायर करता, मोटिवेट करता, और इसी वजह से जो राग थी वो जल्दी से वो वहाँ पर बैठते हुए जो राग थी उसे भी वो सीख गए। नेक्स्ट इज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ बिस्मिल्लाह खां, जो ब्राइट फ्यूचर था बिस्मिल्लाह खां का वो क्या था? विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. He soon became an often heard Shehnai player on radio. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing him play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. द ब्राइट फ्यूचर ऑफ बिस्मिल्लाह खां विद द ओपनिंग, जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खां के लिए ये अच्छा अवसर था। ही सून बिकेम, और वो जल्दी ही बन गए सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाले शहनाई प्लेयर रेडियो पर। जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस प्राप्त की 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खां बन गए जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने कि नया जो नेशन बना था उसका अभिवादन किया अपनी शहनाई के द्वारा। फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वो भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए जब उन्होंने उनके किसी फेस्टिवल में उन्हें प्ले करते हुए सुना, और इसी वजह से उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नाम इस इंस्ट्रूमेंट पर रखा, और वो क्या थी? गूंज उठी शहनाई। Next is a renowned musician and a true Indian. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform as the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America.
National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan, and the Padma Vibhushan were conferred on him. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. Despite traveling to many countries, he was exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. He even refused a position in America, saying that he cannot find the Ganga there. Whenever he was traveling abroad, his heart kept aching for his homeland. बिस्मिल्लाह खान जो थे बिकेम द फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें कि इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए जो लिंकन सेंटर हॉल था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेशनल जो अवार्ड्स थे वो उन्हें मिले लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इंडिया का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड था भारत रत्न वो भी मिला। डेस्पाइट ट्रैवलिंग टू मैनी कंट्रीज़, काफ़ी कंट्रीज़ में यात्रा करने के बाद ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो किसे पसंद करते हैं? बनारस को, एंड डूमराव को, एंड दे रिमेन फॉर हिम, और ये दोनों ही उसके लिए बहुत ज़्यादा वंडरफुल टाउन्स हैं पूरे वर्ल्ड में से। ही इवन रिफ्यूज़, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जो एक पोजीशन जो बनवाई गई थी अमेरिका में, यह कहते हुए कि ही कैन नॉट फाइंड द गंगा देयर, कि वो वहाँ पर गंगा नदी को नहीं प्राप्त कर सकते। वेन एवर ही वॉज ट्रेवलिंग, और जब भी वो विदेशों की यात्रा करते थे, हिज हार्ट केप्ट एचिंग फॉर हिज होमलैंड, तो उनका जो हार्ट था वो हमेशा अपने जो होमलैंड, जो उनकी मातृभूमि है, उनके लिए हमेशा तड़पता रहता। नाउ हेयर आर सम सेंटेंसेज विच आर हाईलाइट दिस चैप्टर। So, first is Emperor Aurangzeb banned the playing of pungi, but it was revived by a barber in his court with some improvisations and got the name Shehnai. The sound of Shehnai was considered auspicious and it is a part of North Indian wedding. Next, earlier Bismillah Khan was a player of Gilli Danda, but later on he earned Bharat Ratna. Everyone from Bismillah Khan's family was a professional musician. Bismillah Khan used to practice music on the bank of the Ganga for hours and he became perfect in the art. He had his programs in All India Radio and played Shehnai from the Red Fort at the time on independence. Bismillah Khan travelled many countries and gave his performance there and impressed all his listeners. He received many awards and recognition from all over the world. He received the highest civilian award of India, Bharat Ratna, in 2001. So students, I hope you must have understood this summary of this chapter, part 2. The Shehnai of Bismillah Khan. So students, thank you so much.